Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamādaya Purnamevāvasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. I am very grateful to SMS for organizing this inspiring conference. It is inspiring because the world is becoming chaotic and everyone is trying to figure out the meaning of what is happening and how to make sense of that and how to move forward. The theme that has been chosen for this conference by this great institution is highly relevant to contemporary period. At the outset, I must admit that the efforts made by the organizers are excellent. Let us have an appreciation for that. Very few conferences make such efforts and bring such values at the beginning of conference. बहुत सारे conference हो जाती है कहीं का अता पता नहीं होता. It's gratifying that we are able to bring out these values which connect with the community. I have prepared a number of slides. I am not going to use them. I want to talk to you. I think that will be a better option. To begin with, I would like to bring home the point that the theme is to have a paradigm shift which draws our attention towards the spirituality as a paradigm. The paradigm that we have in social sciences, in management, in most of the areas draws from positivist tradition of doing science, which talks about an objective reality, a neutral observer, and trying to understand things quantitatively in an objective fashion. And we have tried to emulate all this from physical sciences that has helped us to understand many things. But they have also obscured many things. They have not allowed you to think about many other issues which are not quite important. Spirituality is one such issue which has been marginalized in the mainstream social science or management or in social science. Various disciplines, they don't talk about it because it is non-scientific. I'm glad that here we have the courage to interact with this issue, उससे टकराने की इच्छा तो पैदा हुई. You want to understand what is spirituality and how it works. But the difficulty is that spirituality has also been translated into the positivist paradigm, and you create a scale and ask to rate how spiritual you are, and you get a score, and then you try to analyze that. So spirituality has also been, translated in certain categories where you have a different meaning than spirituality. स्पिरिचुअलिटी के लिए हम लोग भारत में एक शब्द का उपयोग करते हैं आध्यात्म. And that precisely talks about looking within
self-introspection, examining yourself, मैं सुन रहा था बीच बीच में गीता के शब्द उत्तरेदात्मनात्मा में you have to take care of yourself and you have to examine yourself. Now, taking spirituality as a paradigm requires a shift in terms of ontology, epistemology, methodology, axiology. I don't want to go into the details of these terms, you know it. When we talk about paradigm, we talk about the whole worldview. We talk about the perspective to view the reality. So, the spiritual paradigm provides a specific position to view the reality. यहाँ हम सबको देख रहे हैं, हवाई जहाज पर बैठिए तो एक छोटे छोटे मकान दिखाई दे और ऊपर चले जाए तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा. So the position where you are located and the perspective that you adopt towards reality will tell what is there and how you can observe and how you can look at it. Now, one gentleman who is known to all of us, a modern man, trained in England, his name is Mahatma Gandhi. He is one example and he says, I am spiritual. He has written it. He believes in God. लेकिन उनका जो पैराडाइम है उसमें गॉड जो है वो सत्य है. Now, if you have that paradigm, you are going to view reality in a different way. दुनिया आपको दूसरे ढंग से दिखाई पड़ेगी. जिस पैराडाइम का आप उपयोग करेंगे उसके अनुसार जीवन का दृश्य का सारा स्वरूप बदल जाएगा. Friends, it's very, very important to realize that the individual-centric paradigm, which is central to our entire discourse in social sciences and management, tries to work within the boundary of ego. And the spiritual paradigm wants to decenter it, wants to go beyond that individual, and it is encompassing. उसके लिए शंकराचार्य जैसे लोगों की साहस की ऊर्जा की जरूरत होगी, who are able to recognize अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खल्विदं ब्रह्मा. If you realize this, that there is just one reality, now if you take this perspective, आप ये देखिए गांधी जी का जो भजन है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको शरण दे. Now he says ईश्वर और अल्लाह दोनों दो तरह से आप देखने के तरीके हैं, but reality is the same. If you visit सेवाग्राम आश्रम in Wardha or any other Gandhi's ashram, you will find that at least 15 types of prayers are there. वहाँ प्रातः काल 15 धर्मों के प्रार्थना के गीतों का पाठ किया जाता है. Why I want to say this? Because today's one problem is that we see diversity, and that diversity becomes a problem. Now, the spiritual paradigm recognizes that there is a possibility that there are different worldviews. Those who are familiar with Vedanta, they must have seen Vishishtadvaita, Shuddhadvaita, Dvaitadvaita, Dvaita, जितने प्रकार के अद्वैत हैं, चाहे निम्बार्काचार्य हो, माध्वाचार्य हो, शंकराचार्य, आप तमाम सारे
शास्त्र के विचार करने वाले जो हैं वो बताते हैं कि अनेक दृष्टियां संभव हैं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत जैसा ही देश है where you have Charvak on the one extreme who say that there is nothing beyond this material world. We have Buddha who says Anatma, there is no Atman, there is nothing permanent, Atman. और जीवात्मा, परमात्मा और ईश्वर पर भी विशेष प्रकार की चर्चा हमको मिलती है। So we have a range of perspectives. My friend and senior professor in United States where I visited first, I shared with him the various perspectives and knowledge in Indian thought. और उन्होंने कहा बाप रे तुम्हारे यहाँ तो कुछ छुटा ही नहीं है। You have all the perspectives which are available and you enjoy all this. और मैं नहीं जानता कि कहीं भारत में युद्ध हुआ है इन विचार करने वालों में। शास्त्रार्थ तो जरूर हो, लेकिन शास्त्रार्थ was one where you have to recognize पूर्व पक्ष and उत्तर पक्ष को, अपने को भी जानो और दूसरे को भी जानो। So the spiritual paradigm is practical. It helps to view reality in totality. This is very, very important. If you are following the spiritual paradigm, then you are going to view reality in a different way. This is first submission to you. The second important point is that the three issues which have been raised, well-being, sustainability and digital mindfulness, they require serious attention from the perspective of spirituality, because if you are thinking about well-being and if your well-being is only personal happiness, then forget about your personal happiness. कभी आप कोई नहीं पा सकते। It's only the view which says सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। Perhaps making the distinction between me and you is the problem. आपने बहुत सुना है ना वसुधैव कुटुम्बकम, उसकी दूसरी लाइन भी पढ़िए, दास चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। और जो दुष्ट क्षुद्र लोग होते हैं, they make the distinction between me and you, बड़े दुर्मति है। So there is a need to understand this spiritual perspective, particularly which comes from Indian thought traditions. They allow you to have a perspective which is encompassing, which includes others. I will give another example why this perspective is spiritual. We Indians aspire to enjoy four purusharthas: dharma, artha, काम and moksha. We know more about Maslow, we know less about purushartha. तो आप यहाँ तो जर्नल का नाम ही है, तो आप तो पुरुषार्थी हो। When we talk about four purushartha, dharma is the principle of living beautifully and doing your duties, जो कर्तव्य है, जो आपके लिए करणीय है, जो विवेक के अनुसार ठीक है। Perhaps there is no translation of dharma in English. And if you think about the issue of dharma, you are going to create a balanced view of life, where धर्म की एक परिभाषा आपके नजर में शायद आई हो, यतो हृदय निःश्रेयस सिद्धि साधर्मा। धर्म वह है जिससे अभ्युदय, प्रॉस्पेरिटी ऑन दिस अर्थ, जहाँ सोसाइटी में रह रहे हैं, रुपया पैसा सब कमाओ, ऐसा नहीं उसका विरोध है, लेकिन निःश्रेयस, मोक्ष, पारलौकिक, पारमार्थिक, वह भी चिंता करो कि आप क्या हो, इस पर भी विचार करो, मोक्ष भी होना चाहिए। So the idea of dharma is very broad. I don't have time to elaborate. Perhaps आदरणीय ईश्वरी जी उस पर अधिक स्पष्टता से हमको ज्ञान देंगे।
लेकिन जो धर्म का विचार है, क्षमा धर्मोस्तयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। If you decipher the meaning of dharma, इसमें कहीं पूजा पाठ नहीं है, it talks about धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, अपरिग्रह, धीर विद्या, क्रोध भी है उसमें। The same idea comes from yoga tradition, which says Yama and Niyama are the fundamental to pursuing yogic life. And Yama Niyama क्या है? सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, तप, संतोष. If you see this list, it requires a disciplined life on the part of an individual or a community. अगर सत्य की बात करते हैं या अहिंसा की बात करते हैं, it tells that there is someone, some other is there. अगर आप अकेले हो तो what is the question of अहिंसा? मरना और योग क्या फर्क पड़ता है? अहिंसा means that you recognize the presence of the other, अन्य. And if I remember correctly, Gandhi ji has written that अहिंसा means to love your enemy. He goes to that extent. अहिंसा का जो अर्थ उन्होंने बताया वो है प्यार करना, स्नेह करना. It's not a negative concept कि आप मारेंगे नहीं, अरे कोई बात थोड़ी नहीं. This is not अहिंसा. अहिंसा means to love others, and it should be broad enough to incorporate your enemy. That is the view of अहिंसा. So the paradigm which is spiritual, if it is translated into action, it takes into account you and your society, you and your environment. आप वेद में या वेद पाठ कभी सुने होगा तो उसमें पूजा पाठ में जो एक चीज आती है, शांति. भूमि शांति, आपा शांति, वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति. What is the meaning of this? It talks about sustainability. We have to take care of all these. शांति का मतलब मृत्यु का सन्नाटा नहीं होता है. शांति का मतलब होता है flourishing. आप thrive करिए, flourish करिए. Only then you realize the goal of शांति. Please remember it. Now, शांति के लिए चाहिए, मन की भी शांति चाहिए और बाहर भी शांति चाहिए. गीता talks about चित्त की प्रसन्नता, and that comes only when you are able to develop a position which is balanced. It talks about sthita prajna, that you are able to go beyond pain and pleasure. आप सुख और दुख में बहुत परेशान नहीं होते हैं और न बहुत ज्यादा गम में जाते हैं. आजकल तो शादी में कितने लोग गोली खा के मर जाते हैं. प्रसन्नता, अद्भुत प्रसन्नता है. हर्ष, अतिरेक, हर्षकारी, यस, जिहाद भी है और हर्षकारी भी है. हे भगवान, what kind of society we are creating? It requires some kind of rejection under the leadership of Sir. We really need to rethink about the way we are conducting ourselves. Dharma is about conduct. How we really conduct ourselves in society, in relation to environment. We talk a lot about the different issues about climate change and this and that. When it comes to our individual behavior, we do everything which is against that. We are not able to perceive the reality in the right manner. It requires changing your perspective. If you are spiritual, then you are able to perceive the pain of the other person. वृक्ष का भी जो कष्ट है वह भी महसूस करेंगे और दूसरे आदमी का भी कष्ट आप महसूस करेंगे. ये वैष्णव जन तो कहने कहिए ये वीर पराई जाने, दूसरे के दुख को जानना, यही सबसे बड़ा धर्म है. सचमुच
हिंदी में। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़न कहा गया कि भैया पूरे पुराणों में यही तो खास बात है। So we have to take care of the other. जो अन्य है उसको अनन्य बनाइए। Make the other person non other. उसको जब तक आप अपनाओगे नहीं तब तक कल्याण नहीं। और अभी तो we are just bothering about our own self, our own ego, और उसी की इच्छाओं को पूरा करने में हम लगे हुए हैं। और इन इच्छाओं की प्रतिक्रिया है, एक पूरी होगी तो फिर पैदा होगी, फिर वो पूरी होगी तो फिर पैदा होगी, वह पूरी होगी तो फिर पैदा होगी। बुद्ध ने भी कहा कि भैया ये कामना जो है यही सबसे बड़ा दुष्ट है, और उसके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे उसको सिद्ध किया जाए। और मुसीबत तो सबसे बड़ी आती है जो माइंड विच का सबसे बड़ा कल्प्रिट वही है मन। मन का अर्थ व्यापक है। सांख्य योग वगैरह में जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, देयर इट इज सेड दैट माइंड और मानस इज वेरी सबटिल मैटर, बड़ा सूक्ष्म पदार्थ है, बड़ा जबरदस्त है। तो वो प्रकृति का ही अंग, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि उसमें सब का गुणातीत पदार्थ है, और उसका परिणाम क्या है कि आत्मा का प्रतिबिंब आपके मानस में है। तो वह बीच में है, वो भौतिक जगत से भी जुड़ता है और आध्यात्मिक जगत से भी जुड़ता है। एंड देयरफॉर श्री कृष्ण सेज अभ्यास एंड वैराग्य, these are two important methods, requirements if you want to pursue happy life. अच्छा जीवन अगर आप जीना चाहते हैं, यदि आप सुखी होना चाहते हैं, तो आपको विचार करना बड़ा विचित्र है। हम सब लोग तो असंतोष में सुख खोजते हैं। गीता कहती है कि संतोष में ही सुख है। That is the difference in the world. जितना मिल जाए, हिंदी में एक शब्द है अघाजा, तृप्त हो जाए, लेकिन उसकी भी कोई सीमा नहीं। खूब खा लीजिए, उसके बाद कोई अच्छा ये ले लीजिए, अच्छा ले, कभी आप ये नहीं कहेंगे कि ना है, ये तय करना पड़ेगा। The whole world is looking towards such options. Today one of the thoughts which is coming up from the West also is minimalism, minimalistic thought, किफायत। गांधी जी ने कहा हमको तो 2 कपड़ा चाहिए, क्या झंझट है। आज की तारीख में इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब लोग यहाँ जितने बैठे हुए हैं प्रतिदिन आधा घंटा समय इस पर बिताते हैं आज कौन सा ड्रेस पहन करके विद्यालय जाते हैं। Because we have 10, 15 and we have to choose one of that. 50 साल पहले जब हमने अभ्यास की शुरू की थी, तब हमारे पास 2 शर्ट डालता था, कोई झंझट नहीं करती। एक साफ करके रख दिया, साफ सुथरा पढ़ते थे, विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, कोई दिक्कत नहीं। So I think the world is moving in that direction and many people are talking about minimalism, कि कम से कम में कैसे काम चलाएं। अनावश्यक का लाभ उठाने की जो इच्छा है, अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि अभी तो तेल पानी है, फिर भी लोग लाइन लगा के ज़्यादा से ज़्यादा उसकी होर्डिंग करने पड़ेगी। सत्य क्या है मालूम नहीं, लेकिन होर्डिंग होती तो है। ये होर्डिंग की जो इच्छा है वो अभी बड़ी भयानक है, उसके क्या परिणाम है उन सब। So the question is that you expand the paradigm of thought, going beyond the individual, decentering that self and having a perspective which is broad, which is spiritual, जो आध्यात्मिक है, जो आत्म विचार की अपेक्षा, आत्म अभिवृत्ति का व्यक्ति और अंग्रेजी का इंडिविजुअल और सेल्फ, ये सबके अलग अलग अर्थ हैं। हम लोग कहते हैं ना इंडिविजुअल, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं
संयोग से मेरी भेंट भी उनसे हुई थी जब मैं 91 में वहाँ गया था, शिकागो में प्रोफेसर थे और भारत का उन्होंने बहुत गंभीर अध्ययन किया है। उनका नाम है मैथ्यू मैरियट। He has published a book. The title of the book is India Through Hindu Categories, published in 89 by Sage. It's an edited volume. मैं उनको याद इसलिए कर रहा हूँ, उनका कहना है, ध्यान से सुनिएगा, उनकी सूझ कह लीजिए या हमारी सूझ को उन्होंने कहा है कि इंडियंस आर नॉट इंडिविजुअल्स, दे आर डिविजुअल। छिड़ जल पाओ तो गगन समझिए। पंच महाभूत से आपका निर्माण हुआ है, आप इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल तो वो है जिसको फर्दर डिवाइड न किया जा सके, लेकिन आपकी रचना तो संबंधों से लेती है। You are made of relationships, you recognize that. आपका ऋण का कॉन्सेप्ट, आपका यज्ञ का कॉन्सेप्ट यह बताता है हमारे मन में, चाहे ऋण याद हो या न हो, लेकिन अभी भी माता पिता गुरु के प्रति जो एक भाव है मन में, वह ऋण का ही विचार का एक अवशेष है। So these concepts talk about a paradigm. So spiritual paradigm is not new to Indians at least. We have been practicing. बहुत सारा आपने सुना होगा ना, एक शब्द इसे कहते हैं संध्या, संध्या बंदन। पंडित जी लोग करते हैं और लोग भी करते हैं। Now संध्या is done not to gain anything, it's part of your duty. You organize your life in this way. यहाँ पे ये कहा गया कि भाई देखो ना, सूर्य को कभी थकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। तो कहा गया चरई वेती चरई। This Indian thought has courage to say ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृथा कस्य सिद्धम्। That this whole world is occupied by God. भैया आप रजिस्टर किसकी करवाते हो? अपनी जमीन अपने नाम पर झूठे हो तुम। It all belongs to one supreme Lord God. यह ईश्वर का आवास है। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम्। इतना जोर दे करके कहा ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंचित् जगत्यां जगत्। Whatever exists in this world, ये सब कुछ जो है उसी के द्वारा आच्छादित है, वहाँ वही है। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। उनका जो प्रसाद मिल जाए उसको खाकर मस्त रहो, मार प्रसाद करके जो जाए, दूसरे की छीना झपटी मत करो। और दूसरा मंत्र कहता है कि भाई अपने आप को 100 वर्ष तक जीने वाला सोच करके कर्म करते हुए जीवन। तो यह ईशावास्योपनिषद जब लिखा गया होगा, जब सोचा गया होगा और जिस विचार से इसका निर्माण हुआ होगा, जिस थॉट का वो स्पिरिचुअल कि मेरा गांधी जी ने लिखा है और मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि सब कुछ खत्म हो जाए, अगर एक यह मंत्र बच जाए तो दुनिया बच जाएगी। सारी लड़ाई के पीछे यही है। गांधी जी प्रपोज कि जो बढ़िया लोग हैं वो शेयर दूसरों अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी दें। Trusteeship concept has relationship with this mantra ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। We have written it, we have accepted, acknowledged its value. It's important to realize that changing the perspective to view reality changes your behavior, changes your understanding, changes your ways to conduct yourself with the environment, with people. आप देखिए कैसे बदलाव होता है। So change in paradigm, the world view or the way you think about reality is very crucial. When you want to think about global well-being, you need to think and emphasize
well-being of everyone. Sarve Bhavantu Sukhina. I think that should be the aim if you want to have global well-being. Well-being मेरा रुचि का विषय है, काफी मैंने लिखा पढ़ा भी है इसके बारे में। अभी हमने इंटीग्रेटिंग इंडियन थॉट एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी पुस्तक हमने सुंदर से गत वर्ष, और भी बहुत सारी बातें हैं, समय नहीं कितने विस्तार में हम जाएं, फिर 2-4 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। When we talk about sustainability, the question is that if your egoistic values, needs dominate, there is no question of sustainability. You have to reorganize your thought. धर्म और काम मुख्य बड़ा जरूरी है। एक मजेदार बात मुझे याद आ रही है, आपको बताना चाहता हूँ। In Vartha there is a मंदिर of Satyanarayan, very old. वो गांधी जी के जमाने में भी था। I visited that मंदिर and there was one line written on the wall. और उसके आखिर के नाम में संत विनोबा भावे। बड़ी खूबसूरत लाइन है, आपका ध्यान में चाहूँगा, सबका ध्यान में चाहूँगा। मोह का क्षय होना मोक्ष है। मोक्ष कुछ मरने के बाद मिलने वाली जगह नहीं है। If you are able to reduce your attachment, you are in the line of moksha. The degree to which you are able to reduce your attachment, you have moksha. आप इसी क्षण मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं यदि कुछ छोड़ने का, त्याग करने का निश्चय आप करते हैं और करते हैं तो मोह का क्षय होना मोक्ष। It's very difficult. इतनी बड़ी चीजों को हम छोड़ना कैसे? त्याग का इसीलिए बड़ा महत्व है, इसीलिए त्याग को, दान को जीवन का हिस्सा बनाया गया, दैनिक जीवन का कृत्य बनाया गया। आपको दान लेकर के लोग क्या क्या करते हैं आप देखिए। But it is very important that the lifestyle that we are maintaining has very little space for these ideas. We need to teach, we need to tell students how they should think, how they should work, and it requires critical thinking. ऐसा नहीं था कि गांधी एक दिन में तय किए कि हम आधी पैर तक की खुद पाएंगे, हम इतना ही पकड़ लेंगे। गांधी जी के आश्रम में कुछ नियम लिखे हुए हैं, मालूम नहीं होता है लेकिन अभी युवा टंगा हुआ है उनके आश्रम में। और एक बड़ी मजेदार चीज है उसमें, उन्होंने 10 सूत्र बताए हैं, 10 नियम बताए हैं, और उसमें एक नियम बड़ा जोरदार है बाप रे। उस नियम का नाम है अहिंसा, सत्य, हिंसा, हम लोग जानते हैं, लेकिन एक नई चीज आप सुन लीजिए, अस्वाद। उन्होंने कहा जब तक जीभ पर नियंत्रण नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। And he used to create chutney of meat. तभी तो टेस्ट पर नियंत्रण होगा। अस्वाद, हम लोग भोजन स्वाद के लिए करते हैं, भोजन को शरीर की रक्षा के लिए चाहिए। गांधी ने कहा हमें जितना खाएंगे इससे ज्यादा है तो नहीं ना, इतना बोलेंगे उससे ज्यादा है तो हम नहीं बोलेंगे, हम मौन रहे चाहे जो भी बोले। तो मेरा ख्याल है कि कुछ सूत्र हैं जिन पर विचार करना चाहिए, आचरण में लेने की आवश्यकता है। We need to reduce our needs. I think that is the requirement for sustainability. हम सब खा जाएंगे तो हमारे बच्चों खाने क्या बचेगा? गलत बात है, हम लोग कई पीढ़ी का इंतजाम करने में लग जाते हैं, तो लोग वो जो है वो दूसरा पक्ष है उसका, लेकिन ये विचारणीय प्रश्न है। And the recent one, the mindfulness, it's digital mindfulness, it's a new issue which is coming up. It is coming up in a big way. It has attacked our mind, attacked our life space, attacked the way we interact with others,
अब देखिए इसमें से कितने लोग मंच और मंच के नीचे सभी अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। उसकी मजबूरी है हमारा अभ्यास पड़ गया। हमको यह चिंता है कि कौन सा मैसेज आने वाला है, हम देख पता भी नहीं, आगंतुक की प्रतीक्षा में हम व्यस्त हैं। हम भी उसमें शामिल हैं। इसका जो अभ्यास है उससे कैसे मुक्त हुआ जाए। एक दिन संयोग से एक मीटिंग में दिन भर के लिए मैं कहीं गया हुआ था और मोबाइल घर पर छूट गया, बड़ा आनंद। कुछ मिनटों में शुरू में तकलीफ हुई कि कहाँ रह गया। हे भगवान, ये परिग्रह का परिणाम है। और परिग्रह कितना जरूरी है, उस देर में कितना कष्ट इनको होता है। शुरू में जब इस तरह का मोबाइल है, संयोग से उस समय में वाइस चांसलर साहब सुबह 5 बजे की फ्लाइट से मुझे नागपुर दिल्ली से जाना था और अपना टिकट दिया। उसके बाद देखा तो मोबाइल है, मोबाइल खाली था। और पंडित जी की परेशानी ये है कि इस नए मोबाइल में आपको मोबाइल नंबर याद करने का काम ही छोड़वा देता। मुझे ये भी नहीं याद था कि मेरे मोबाइल का क्या नंबर है। मैं बड़े संकट में संयोग से लाइन में एक मित्र दिखाई पड़े, तो हमें ये नहीं कहा कि हमको नंबर भी नहीं याद दीजिए। उस मोबाइल से संयोग से उस जो ड्राइवर उसके अच्छा भी पहुँचा दिया। बट सी हमारी मेमोरी पर अटैक हो चुका है। क्या हम याद करें और क्या हम न याद करें, यह हमारा मोबाइल चाहता है। न करें मोबाइल से पूछना पड़ेगी हमारे नाम बताओ। आप सब कुछ अगर उसको दे रहे हैं तो क्या होगा? I'm trying to bring out the question of the intervention that is taking place in terms of AI. आप कोई भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर हाजिर है, गलत है, मेरा प्रश्न है कि उत्तर सरकार आपको मिल जाएगा, अच्छा भी उत्तर मिलता है, उसके लाभ भी हैं, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है। और अगर मैं हिंदी का शब्द कहूँ तो अतिभार, ओवरलोड हो गया, सूचना का ओवरलोड, एंड हाउ टू कोप विद दैट इट हैज बिकम अ रियल चैलेंज। तो गांधी कहते थे ज्ञान के बारे में भी तो संतोष कर लेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। यहाँ भी जो सूचना का हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा है, ये नई जरूरत हमारी पैदा हो, अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है, जितनी आवश्यक है जितना उसका नियंत्रण किया जाए, यह आपकी चर्चा में आएगा। कैसे हम एडिक्शन करें, इंटरनेट एडिक्शन या एक मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी है। कितने प्रकार का वो है उसका चर्चा नहीं है, और कितने प्रकार के कष्ट से mental health issues are coming up because of that. I think it is very important to regulate our life. We should not अपने जीवन की लगाम जो है उसको देने की जरूरत नहीं है। इस लगाम पर याद आया और वही कहता कि मैं अपनी बात भैया, आत्मा जो है वो रथी है और जितने आपके सेंस ऑर्गन्स हैं वो सभी घोड़े हैं उस रथ के, और मन भी बीच में है। अगर लगाम नहीं लगी, स्ट्रक्चर नहीं लगा, तो दुष्ट अश्व आपको कहीं गड्ढे में गिरा देंगे, कहीं लड़ा देंगे, मार डाल देंगे। यदि हम
अपना रेगुलेशन नहीं करते हैं, आत्मविचार नहीं करते हैं, तो हमारी स्थिति ठीक नहीं है। तो the spiritual paradigm invites us to engage with a broader notion of self, which is located in broader context. With these words, I again thank the organizers और मैं एक वैदिक जो विचार है उससे विचार आपका जो मुझे करना था उसे समाप्त करूँगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु।